Okay, so hello everybody. Today we are going to start our 2 a.m. conversations with Kundan and Chabi, and we'll do very fun things. So he will introduce me and I will introduce him. Um, I'll go first. So he's Kundan. He's from Bihar, and he is the most compassionate, cheerful, joyful person you will meet. His happiness and his smile can tell his, wisdom in leading the lives and helping others. Yes. हेलो सुभी। सुभी को इंट्रोड्यूस करना हो तो एक वर्ड में अगर करूँ तो करेजियस। और इसने बहुत बार शो किया है और मेरे साथ सुभी 2 साल काम कर चुकी है, तो मैंने देखा है हर सिचुएशन में अपना करेज का इस्तेमाल किया है। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि कभी हिम्मत नहीं आती है। दैट्स सुभी। या Thank you. या So today we are going to talk on very interesting topic. आज हम एम्पैथी के बारे में बात करेंगे, उसमें सवाल पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और हमारा एम ये रहेगा कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो दैट यू आर नॉट जस्ट अवेयर अबाउट व्हाट इज एम्पैथी, आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि एम्पैथी क्या है, पर आप ये भी समझेंगे कि हम किन किन छोटी छोटी चीजों से एम्पैथी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और जो हमारा पर्सनल सजेशन रहा एज अ गांधी फेलो कि आप उससे क्या इम्पैक्ट देखते हैं, अगर आप सच में एम्पैथी अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट यू विल सी। सो आई कैन स्टार्ट फर्स्ट। सो कुंदन, व्हाट डू यू थिंक एम्पैथी इज फॉर यू? या तो मेरे लिए एम्पैथी एक कंपैशन का टूल है कि हम कंपैशनेट बोलते हैं ना कि कंपैशनेट है, तो एक टूल है जिससे हम कंपैशनेट हो सकते हैं। एम्पैथी हमें ना दूसरों के एक्सपीरियंस को समझने में करता है। जैसे कि सुभी ने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको बिना एक्सपीरियंस किए हुए मैं समझ सकता हूँ। दैट्स एम्पैथी फॉर सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज। तुम्हारे लिए क्या है? See, for me, empathy have always had a bigger picture rather than just understanding what somebody have gone through. Yeah, उसकी life में उसने क्या face करा in certain situations. For me, empathy have been that am I aware of what pain other have gone through? Like, am I considerate that if somebody have, let's say, gone through X situation and he feels that he needs some help or he needs an ear or he needs support in certain way, so can I be there for him or not? And if I can't be there, then can I find the best solutions for him or not? And openly Yeah. also accept that sometimes I can understand a lot of pain others can go through, but there are also a bigger picture to it, right? मतलब मेरे लिए ऐसा लगता है कि एम्पैथी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बस पेन में अटक गए. For me it is that you are also thinking beyond out of it. It's just not कि oh I'm sorry, yeah, I feel you. It should be more than what can we do about this, or do we really need a solution also about it. So for me empathy have been that way always. एम्पैथी वर्ड जब सुना होगा या महसूस कब किया, पहली बार एम्पैथी महसूस कब किया? um See, मेरे को vocabulary wise में it was, I'll be very true, I was after my college I heard about this word empathy, and that too in social sector to be हम social sector में बहुत empathy बोलते हैं. But in real life I feel Kundan ki since my childhood we have been taught to be empathetic to each other, right? Even not just to humans, even to nature, even to non-living things, then you need to be empathetic, you need to be respectful of the fact that you own it. And my nani and my nanu used to tell me a lot that even if you are planting a tree or even if you are plucking a flower, you should technically talk to them first, you should technically ask them how they are. So I remember when I was very very small, like I was 3 4 year old, so when I used to go in the garden with my nani एंड हम खराब पौधे निकालते हैं, राइट? सो माय नानी यूज्ड टू से कि ऐसे खींच के मत निकालो, आराम से निकालो. Okay. Say that you are going to grow bigger or you are going to grow very nicely now. So she always used to say this to them. Then slowly in my life I started even using that with human, that oh, you are feeling pain, okay,
what can we do about it? Or I understand you that, you go through this much. But now I think, of course, there's a bridge that I have also, was able to understand bigger picture, right? Because earlier क्या होता था, empathy में हम अटक जाते हैं, right? हम किसी का कोई situation सुनते हैं और हमें ऐसा लगता है कि like we become hopeless. Now at least I don't become hopeless out of things. But yeah, to the situation that I remember first time I understood about empathy was around that vocabulary wise. Yeah, when I entered social sector, vocabulary wise I knew. But I would really want to know your experience too on empathy. So मुझे तो एम्पैथी के बारे में 2016 में पता चला, जब मैं गांधी फेलोशिप में आया तो पता चला एम्पैथी एक वर्ड होता है। तो वोकैब्स के मामले में तो वही है कि बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ कि मैं रेंजर साइकिल खरीदना चाह रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे कि साइकिल खरीद के लफुआ बन जाएगा, मतलब कि इट्स लाइक कि अब तुम हीरोगिरी करना स्टार्ट कर दोगे। और मुझे लगता था कि नहीं, मतलब ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं अब थोड़ा-सा क्लास 9th में चला गया हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे एक हैप्पीनेस देगी। उस टाइम पे सब लोग अगेंस्ट हो गए, लेकिन मेरी माँ डटी रही। नहीं, बोला कि नहीं, इसको साइकिल चाहिए तो चाहिए, इट्स ओके, क्योंकि वो समझ रही थी। तो मुझे लगा ना, ये समझ रही है मेरे सिचुएशन को, मेरे इमोशन को, और मुझे जानती है। तो वो हर्ट वाली फीलिंग आई ना कि वो समझ रही है मेरे को, और वो कनेक्शन जब फील हुआ ना, मुझे लगा कि ये एम्पैथी है। और वो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ, ये एम्पैथी है क्या? मुझे तो लगा कि हाँ, मम्मी प्यार कर रही है, दैट्स व्हाई वो सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब अब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने आप को, तो देख पाता हूँ कि वो एम्पैथाइज़ कर रही है। सिंपल सा क्यों? क्यों एम्पैथाइज़ कर रही है? क्योंकि मेरी सिचुएशन को समझ रही है, इमोशन को एक्नॉलेज कर रही है, और जो मैं डिसीज़न लेना चाहता था, उस डिसीज़न को सपोर्ट कर रही है। तो वो एक सेंस ऑफ एम्पैथी फीलिंग हुई। और इवन वो जब फील होता है ना, तो उस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, कि लगता है कि नहीं, ये इंसान है जो जीवन में मेरे साथ रहेगा। तो ये मेरी स्टोरी थी जब मैंने पहली बार ये इसको फ़ील किया। लेकिन ये इसके आगे मेरा एक सवाल है कि कई बार एक सिचुएशन हुआ कि हमारे पेरेंट्स सिम्पैथाइज़ कर पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब पेरेंट्स सिम्पैथाइज़ नहीं करते। लाइक कि कंपैरिज़न स्टार्ट करते हैं कि अ, मतलब शर्मा जी का लड़का या शर्मा जी की लड़की, या मतलब नॉर्मली किसी का भी, कि बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है। लेकिन हमारे सिचुएशन को नहीं समझते हैं, या बोलते हैं कि तुम कितने गधे हो, तुम्हें समझ नहीं आती है, या तुम कितना स्लो लर्नर हो, या अलग-अलग टैग यूज़ करते हैं। तो अ, मतलब मेरे लिए बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कि अलग-अलग लोगों ने बुली भी किया है, चीज़ों को लेके, कि मेरी आवाज़ को लेके, कि लड़की जैसा बोलता है। तो मतलब मेरा यही सवाल है कि हम इस तरह की एक्सपीरियंस करते हैं, पेरेंटिंग में क्या रोल है तुम कि एम्पैथी का क्या इम्पोर्टेंस है पेरेंटिंग में? क्योंकि तुमने बोला कि नानी की तरफ से ये चीज़ें आई, लेकिन मुझे तो लगा कि मतलब जिस जिस चाइल्डहुड से मैं गुज़रा हूँ, वहाँ पे एम्पैथी नाम का चीज़ ही नहीं था। लोग हर चीज़ में टैग लगाते थे कि तुम गधे हो, तुम्हारी आवाज़ पतली है, तुम एक कामचोर हो। तो बच्चे का डेवलपमेंट में क्या रोल है एम्पैथी का, वो मैं समझना चाहूँगा। या I think one of the most highlighting topic, to be very true, but I also feel that it was there in our culture earlier. It's just missing now. And हुँ, हुँ। ऐसे blame भी नहीं कर सकते, to be true. My mother is also a working mother, हुँ, so हुँ। I can just imagine that, अपने वो काम के pressure के बाद she's coming home, and then there are certain boundaries to it, right? आपका effect काम का बच्चों पे आते ही आता है, but so the values देने के जो कह सकते हो डिपार्टमेंट्स होते थे, वो ज्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स और द एल्डर ऑफ द फैमिली के होते थे. So, and since we were in the joint family, so there was a very codependent relationship that you bear. But I won't deny, Kundan, after actually working 5 years in हुँ, हुँ। social sector, I've seen that children are very badly considered, right? उनके opinion consider ना करना, उनको सुनना नहीं, उनके thoughts को नहीं सुनना, and then suddenly they grow up, they become 18, and then everybody expect, oh, whatever they say, it's right.
And some at some time though, like in some areas of our India, still India, people get married by 80. So suddenly you are actually putting so much Mhm. pressure on people to decide for things where earlier आपने उनको कोई space भी नहीं दिया, आपने उनको सुना तक नहीं आज तक, and suddenly they have the responsibility of leading a life now. So two things that I understood by parenting being empathize is that one, they understand what's happening is true, is new. Lot of time हम empathize Mhm. करते हुए अपनी situation को बीच में जोड़ते हैं जो सामने वाला बोल रहा होता है, और हमारे साथ जो भी past में हुआ होगा उसको लेके हम empathize करते हैं कि जैसे आपने साइकिल Mhm. का एग्जांपल दिया कि हम पैदल गए थे तो तुम भी पैदल जाओ. They are not understanding that maybe you are not capable enough, or you're not, you want a cycle, that's going to be convenient for you. They don't consider that. They think हम गए थे तुम भी जाओ. When this happens, हम automatically empathize, हम किसी लेवल पर empathize तो कर रहे हैं, but हम उसको अपने decision पे फिर हम थोप रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे, हम सिर्फ डाल रहे हैं. This is one thing that I feel. And second, I feel when we talk about parents being empathetic, they also need to understand that everything is changing. So you need to Mhm. change with the environment. You need to be empathetic that, okay, if things are gonna change, I am gonna listen. I'll be at least empathetic enough to myself, also considering that this is a new environment for me and I need some time to understand it. Because it's the Mhm. reality that kids are growing at a really increasing pace, or at a really good pace जितना हम थे. We were the 90s kids, and अब हम अगर 20s kids देखते, we still feel that, oh, there's so much gap in us, in our ideologies. So I think for parents, so it's so necessary to even empathize this to this fact that there would be something that they might not know, and for that they need to kind of lower down a bit and understand, or I think maybe open their arms and start to learning. So yeah, that's what I feel. या तो मेरा ये सवाल है कि अगर मेरे में सिर्फ खुद को लेके एम्पैथी नहीं होगी, तो क्या मैं दूसरों के लिए एम्पैथाइज़ कर पाऊँगा क्या? कि आई थिंक इस पे वो कोट बहुत जाता है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं हुँ, रख हुँ। सकते तो आप दुनिया का नहीं रख सकते. तो इन ऑर्डर टू टेक ओके, केयर ऑफ द वर्ल्ड, you need to take care of yourself first. And 2 3 things actually I want to add here, to be very हुँ, हुँ, true. हुँ, हुँ, um, हुँ, हुँ, So if we summarize, we understood, okay, empathy is that हुँ, when you हुँ, are understanding other situation as it is, and you're not including your perception in it. You're just हुँ, हुँ, listening to हुँ, them, have an open ear, आप उनको सुने, समझे, पर अपने opinion, अपने thoughts को mix ना करते हुए सुने हुँ, समझे. This is empathy, right? पर इसमें हुँ, 3 4 चीजें आपने जो बोली और हमारी conversations that I'm picking up, that one is that we get connected. Let's say somebody really हुँ, हुँ, heard us, we feel they are love, they are it, they are the person. अब ये हमें कभी हुँ, छोड़ के नहीं जाएंगे, and this is it. So one, this is nature that we build. Second, we feel that empathy हमेशा दूसरे से मिलती है, right? जो हमारे conversation से भी आया कि empathy हुँ, हमेशा हुँ, दूसरे से मिलती है. क्या empathy हमें अपने आप से मिलती है? Can we really empathize with our own selves to those limit कि हमें दूसरे की, मैं ये नहीं कहती जरूरत ना हो, बट एक 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 माइनर लाइन हमेशा होनी चाहिए दैट ओके वी नो आवरसेल्व्स टू सर्टेन लिमिट्स, राइट? तो कैन हुँ, सेल्फ एम्पैथी बी अ कंपोनेंट? एंड थर्ड इज दैट व्हाट इफ ना मिले, व्हाट इफ एम्पैथी नहीं मिले, हुँ, अब अब हुँ, क्या? हुँ, हुँ। Should we get affected with the fact that हमें एम्पैथी नहीं मिली and we become the victim of life? What do you think on these 3 points? ओके, तो वही सो कई बार क्या होता है ना कि जब हम एम्पैथी नहीं मिलते हैं, तो हम अब विक्टिमाइज़ेशन मोड में चले जाते हैं, कि मेरा लाइफ़ ऐसा रहा है, इस वजह से मैं ऐसी ही हूँ। जो होता है ना टैग जो लाइफ़ सेंटेंसेस हम क्रिएट कर लेते हैं कि मैं तो ऐसी हूँ जस्ट बिकॉज़ मेरे चाइल्डहुड में ये ट्रॉमा हुए हैं। लेकिन उस पे तो आपका कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब तो कंट्रोल है ना? वी हैव अ चॉइस कि हमें क्या करना चाहिए या क्या अच्छा है मेरे लिए। तो अगर मुझे अगर बचपन में नहीं मिला एम्पैथी तो आई हैव टू
डिसाइड कि मुझे कैसे एम्पैथी कल्टीवेट करना है, और वो तरीके हमें फाइंड आउट करना होगा। तो मुझे जो लगता है, जो एम्पैथी डेवलप खुद के अंदर डेवलप है, खुद के लिए डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो खुद को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम खुद से बात कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है, इतना हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव खुद को लेके रखे हैं ना, या विलेन बना के या विक्टिम बना के रखते हैं ना, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। कहाँ पे हमने खुद को नेगेटिविटी से भर रखा है। दूसरा, ऐसे थॉट पाल के रखे हैं जो इफ़ेक्टिव नहीं है, इनइफ़ेक्टिव हो गए हैं। उस थॉट को भी हमें मतलब हटाना पड़ेगा कि भाई नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा है। तीसरा, कि हमारे लिमिटेशन को समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, कि हमें लगता है कि हम दुनिया का हर एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि हम ये इतनी लिमिटेशन है। देन हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे स्ट्रेंथ ये हैं और ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तब जाके हम सेल्फ एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। यानी सेल्फ एम्पैथी से पहले सेल्फ अवेयरनेस, खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी लिमिटेशन को लेके, वीकनेस को लेके, स्ट्रेंथ को लेके, और इवन हम कैसे अपने आप से बात करते हैं। तो सो हम मतलब जो हमारी मूवी है ना, फॉरएवर जीना सिखा दी, वो एक गलत मुझे लग रहा है परसेप्शन दे के रखा है। और हम हमेशा चाहते हैं ना कि क्लोज़र जो भी हो ना, हमारा हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन लाइफ मतलब मुझे लगता है अनफेयर है। हम जितने अच्छे रिश्ते बनाते हैं, कहीं हो जाती है, और वो है। और वो अनफेयर ये भी है कि हमें ये एक्सपेक्टेशन रहे ना कि सामने वाला इंसान जीवन भर एम्पैथाइज़ करते रहे, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज होती है। हम बदलते हैं, लोग हमारे साथ नए-नए जुड़ते हैं, और अलग-अलग लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो मतलब अगर किसी इंसान से हम बात नहीं कर रहे हैं, तो वो पॉइंट आएगा जहाँ पे कनेक्शन कम होते जाएगा, प्रायोरिटी कम होती जाएगी। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे सुबह से रिश्ता रखना है, तो आई हैव टू प्रायोरिटाइज़ माय टाइम, कि वो एक कनेक्शन मुझे रखना है। अगर मुझे नहीं रखना है, तो आई हैव टू प्रायोरिटाइज़, ठीक है, मैं कॉन्शियस चॉइस ले रहा हूँ कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन दोनों में कॉन्शियस चॉइस होना बहुत इम्पोर्टेंट है एम्पैथी के लिए। और कॉन्शियस चॉइस नहीं लेते हैं, तभी हमें लगता है कि अरे यार, मैं चेंज हो रहा हूँ, या अगर मैं नहीं पूछूँगा तो दूसरा इंसान बोल देगा, सुबह बोलेगी, "यार शकुंतन, तुम चेंज हो रहे हो।" तब मुझे हिट करेगा, अरे यार, मैं बदल गया क्या? लेकिन जब कॉन्शियस चॉइस रहेगा, तब हम अपने डिसीजन को लेके, अच्छा, मैंने कॉन्शियसली चूज़ किया है कि एक रिश्ते से इतना ही कनेक्ट होना है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्लियर रहना। नहीं क्लियर रहेंगे तो फिर हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, अच्छा, मैं बदल रहा हूँ, और बदल रहा हूँ, उससे मुझे अफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई थिंक इन दोनों पॉइंट्स पे सर्टेन थिंग दैट आई फील इज हुँ, especially to connection with empathy, हुँ, हुँ, which I really learned from my work. Being a social हुँ, worker, आप कितनी situations में जाते हो जहां आप literally empathize कर रहे हो, आप चीजों को देख रहे हो, but you come in the front of solution front, right? आप empathize करते हुए भी उस community के साथ कुछ चीजें ऐसी ढूंढते हो जो वर्क फॉर बोथ ऑफ यू, क्योंकि आप दिस इज ट्रू कि आप हुँ, उनकी लाइफ में जाके कुछ चेंज नहीं ला सकते। और शायद बहुत बार कम्युनिटी को ये भी लगता है कि हम क्यों ही बता रहे हैं, क्या ही कर लेंगे, लाइक यू नो द पावर हुँ, ऑफ changing their lives. But I just feel, which I personally think, that it's true that we connect with people, but it's also very true that we understand that we got connected with people, because then you can draw a clear line that you know मैंने जो एम्पथाइज किया या मैंने जो बोला वो गलत नहीं था, एंड इट्स ओके दैट आई कनेक्टेड विद देम, एंड इट्स आल्सो ओके दैट दे मूव्ड ऑन। सो उसमें सेल्फ एम्पैथी का बहुत पार्ट आएगा जो हम बात कर रहे थे, जिसपे हम एक्चुअली टूल्स यूज कर सकते हैं दैट वी कैन डिस्कस इन अ वाइल। क्योंकि जब हम सेल्फ एम्पैथी करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम ये भी बॉर्डर लाइन्स बना देते हैं कि वी आर टेलिंग अ स्टोरी टू समवन because we want to tell them, not because we are expecting them to stay with us forever, or you know, change our stories or change our yeah, narrations or bring something in it. No, if you got somebody who is helping you to be a better version of yourself, or who's helping you to, you know, articulate your pain, it's amazing, you are blessed, you know. But it's also necessary for us to understand that अगर वो नहीं मिला, a lot of time जब हम अपनी स्टोरी बोलते हैं, और अगर वो रिकॉग्निशन या वो ग्रैटिट्यूड या वो
यू नो फीलिंग हर्ड वाली फीलिंग नहीं आई तो भी इट्स ओके, because at the end I have myself to be empathetic for myself. I don't need to be dependent on other कि वो empathize करेंगे तो I will have my empathy, I will have my closures. So this is I feel with respect to connections with empathy. I can't deny the fact कि आप नहीं करते. It's a very natural process. It's a human need. हम फॉर्म ही ऐसे इमोशन से बन के हुए हैं कि जब हम कनेक्ट करते हैं किसी से या हमें ऐसा लगता है कि यू नो somebody is listening to us or they are prioritizing us, we just like we give all ourselves to them. I think that borderline needs to be created. But yeah, it's a reality project. Yeah, it's true. जब याद है हम दोनों जब कनेक्ट हुए थे, इसके पीछे क्या थी कहानी थी कि हम एक दूसरे को सुने समझे और उसके बाद हम कनेक्ट हुए. तो आई थिंक एम्पैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वनरेबल होना, वो स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे मतलब सेफ फील हो, और वनरेबिलिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम एम्पैथी मतलब बिल्ड कर पाएंगे. Absolutely. But just to highlight, there are people that they know my story or they made me feel hurt, but they are not there in my life. So it's lucky that you're there. I am thankful, of course. But I also have this bigger understanding that, you know, not everyone is going to stay. So that's okay. But interestingly, I want to actually move towards self-empathy tools and that things you can do personally. You know, हमने 3 चीजों की बात करी, which I think makes so much sense. One is we victimize ourselves. Second, we हम continuously negative thoughts या negative perspective रखते हैं. And third is that we don't know our boundaries. That's why हम कहते हैं हम बिल्कुल लुट जा रहे हैं चीजों की तरफ, because we don't understand our boundaries or we don't find it important to create it. हम like you know I want to know 3 things that you can do in order not to feel a victim, in order to transform your negative thoughts into positive, and third is in order to even understand what your limitations are. Guess कर दो. तो मुझे लग रहा है कि खुद की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बाउंड्री क्रिएट करने से पहले कि भाई हमारी लिमिटेशन क्या है, हम क्या सर्व कर सकते हैं, क्या सर्व नहीं कर सकते हैं, क्या मतलब मुझे मजा किस चीज में आता है, वो चीजें अगर हम जान पाए देन उससे हमें पता चलेगा कि मुझे कहाँ बाउंड्री क्रिएट करनी है, कहाँ मैं सुन सकता हूँ और कहाँ नहीं सुन सकता हूँ, कहाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने आप को प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं हर जगह मुझे एम्पैथाइज होना है. नहीं, इतना सारा मतलब दुनिया में सब कुछ हो रहा है तो मुझे जरूरत नहीं हर जगह एम्पैथी डेवलप करने की. मेरे को क्या लग रहा है, मुझे कहाँ चॉइस है क्या, तो वो वाला पहला पार्ट. दूसरा जो हम बोलते हैं ना कि एक्चुअली में कि जो नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, तो यहाँ पे इतना एक छोटी सी थॉट रहती है और उस थॉट को लेके अगर हम 70 बार सोचते हैं 70 अलग अलग पर्सपेक्टिव आ जाते हैं और वो भी नेगेटिव तौर पे. तो जब भी अभी थॉट आए ना तो जस्ट राइट डाउन कि क्या चल रहा है दिमाग में एंड थिंक कि भाई ये मुझे सर्व कर रहा है थॉट कि नहीं सर्व कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो कैसे चेंज कर सकता हूँ. अगर लग रहा है कि नहीं ये नेगेटिव थॉट है ना मुझे इंस्पायर कर रहा है अच्छा बनने के लिए, तो उस थॉट को रखो. अगर नहीं लग रहा है तो देन हमें चेंज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम जो एज अ पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग है कहानियों में जीते रहते हैं और कहानी का नैरेटिव जब तक नहीं चेंज होगा ना तब तक हम वो जो हीरो है ना, वो हीरो की आइडेंटिटी या हीरोइन की आइडेंटिटी हम नहीं पहचान पाएंगे. हमें लगेगा हम विलेन ही है अपने लाइफ का. तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब थर्ड पर्सपेक्टिव से देखने, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है. क्योंकि अगर हम उस चीज को नहीं देख पाए तो उसी में हम रह जाएंगे. तो जब भी हम बात करते हैं दिमाग में थॉट को, तो उस थॉट को पेन पेपर पे लाना चाहिए, देन हम उस नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं. या let's dig down deeper, you know, because these points are getting very interesting and it's something that everyone goes through when they start their journey, right? So let me
when we say of negative thoughts, right, हम ऐसे conditioned हैं कि हम negative सोचते हैं. We are conditioned that way. कि अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना तो हम उसमें ढूंढेंगे, ओ सब अच्छा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. Like, you know, we don't believe that good things are happening to us. So I think we are conditioned in a way that हमें लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होना जरूरी है in order to make a picture very hit. राइट, हम पिक्चर में क्या करते हैं, विलन दिखाते हैं और हीरोज विलन को टेक्निकली मारता है, जीतता है, व्हाटएवर, एंड देन द पिक्चर इज हिट. एंड दैट्स हाउ वी क्रिएट आवर स्टोरीज इन आवर ब्रेन. My particular discussion want to dig down deeper is that, you know, अब आ रहे negative thoughts and not every time you can write down. Not every time it's even words. It's just a feeling. It's just a emotion that, you know, आप उसको technically words में नहीं डाल सकते, but आपके दिमाग में वो negative है because your energy is getting drained out. So you're understanding कि वो positive तो नहीं है. In that case, what would you do? Okay. So ये सिचुएशन होती है ना सुबह, तो इसको हम बोलते हैं ना फाइट एंड फ्लाई मोड. तो ऐसा सिचुएशन में हमें लगता है ना कि सरवाइव कर जाए तो ही बड़ी बात है. जब भी हम वर्स्ट इमोशन में जाते हैं, तो वर्स्ट इमोशन का मतलब ये है कि जब हम पैनिक फील करते हैं, जब हमें लगता है वर्दी नहीं फील कर रहे, तो ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे पास जनरली कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ. इस मोमेंट में हमें फाइट फ्लाइट मोड बोला, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है. तो उस मोमेंट में तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन उस मोमेंट में एक चीज हम कर सकते हैं कि कौन सा इमोशन आ रहा है उसको महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं. मतलब एक नाम दे सकता है कि ओके, अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ, सारी फ्रस्ट्रेशन है. फ्रस्ट्रेशन किस वजह से, वो अगर वो रिकॉग्नाइज हो पा रहा है तो वो हम मतलब इमोशन को टैगिंग कर दे उस मोमेंट में, तो वो इम्पोर्टेंट है उस समय के लिए. मैं बात कर रहा हूँ जब इस इमोशन से हम निकल जाए तो लॉन्ग टर्म में कैसे हम अपने आप को नेगेटिव थॉट से हटा सकते हैं. एक तो मुझे लगता है ना कि हमें ग्रैटिट्यूड देना सीखना पड़ेगा. अब ये क्यों, ये सिर्फ बोलने के लिए कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या-क्या एक्सेसिबिलिटी देती है. अगर हम किसी रिलेशनशिप को लेके ले तो क्या-क्या एक्सेसिबिलिटी मिलता है, अगर वो नहीं रहे तो क्या एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाए. जब इस चीज को हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तब हम वर्दी फील करते हैं. तब हम मतलब हमारी जो ब्रेन है ना उसको चेंज करते हैं. तब हम क्या बोलते हैं, सर्वाइविंग मोड में नहीं रहते, हम क्रिएटिविटी मोड में जाते हैं. तो जब तक हमारा ब्रेन क्रिएटिविटी मोड में नहीं जाएगा तब तक हम इस तरह के थॉट्स नहीं ला सकते हैं. तो वो जब भी हम बात करते हैं जो आप बोल रहे हो कि किस मोमेंट में, तो हम जब न्यूट्रल फील करें या हैप्पी फील करें तब ये सब चीजों को लाना चाहिए. तब वो थॉट प्रोसेस धीरे-धीरे बिल्ड करने की जरूरत है. हाँ, उस मोमेंट में जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो उस समय हम सिर्फ इमोशन को फील कर सकते हैं, उस समय राइट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ वो जो हम कोपिंग मैकेनिज्म बचपन से सीखते हैं वही रहता है कि हमें लगता है कि नहीं कुछ तोड़ देना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, वही सब रहेगा, वो रहेगा. लेकिन उस मोमेंट पे एक ही चीज हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इमोशन को टैग नाम दे दो, ये इमोशन है, और कॉन्शियस जितना रह सकते हो. या Nice. And I will add one thing to this that particularly I discovered. See, it's very natural for us to think negative. First, accepting that it's very natural for us to think negative. That, you know, so it totally depends on your conversation with yourself. So now something if negative comes to me, na, I convert it into funny. Yeah, I think oh जी अब आ गए आप भी, you know, चलिए आपकी भी सुनते हैं. That conversation, when we, you know, change the tone of the conversation, generally what happens when we think negative, we start talking, oh my god, what's gonna happen, what will happen, and this is a constant conversation that's happening within us. But the moment we want to break this conversation, I think the tone needs to change. Either say it in a very funny way, either say it in your favorite cartoon character way, anything that makes you happy. You need to change the tone with yourself. And the moment we say, oh gee, you are gonna come, okay, let's listen, कि आप इस चीज को कितना critically बुरा दिखाओगे, the whole conversation keep on at least start changing. At least you start realizing that this can be converted into something funny as well.
So this is one thing that I have personally felt, and when I was on my journey, of course, um, I won't say that I've reached to those pro level, but yeah, at least a realization works. And second is creating narrations for yourself. A lot of time, Yeah. it's not that you can't think positive, it's just you don't have access to those narrations at your hand. So initially, when you are in the phase of finding yourself, creating yourself, so many things are happening all around you, it's better you have those narration accessible to you, maybe through a diary or through a phone, through a piece of paper, or even through nature. I have been a very supporter of nature in this way, right? Because हम क्या बोलते हैं कि सूरज उग रहा है, that means it's a new opportunity. This is a narration Mhm. that I have created for myself. Anybody can create for themselves too. क्योंकि it's also proven कि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी चीज से रिलेट करते हैं हमारी लाइफ में, हम जब भी वो ऑब्जेक्ट देखते हैं कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे वो हमें वो ही फीलिंग्स देते हैं, राइट? when we look at the stars, we feel the warmth of it, we feel the beauty in it, because हमने वो नरेशन उनको वैसा दिया हुआ है कि जब हम स्टार देखेंगे तो वो सुंदर होगा, वो पीसफुल होगा. So narrating through your object becomes, second thing that you can at least start trying to, so that your creative mode can be achieved. And third thing is that I have felt that agar you don't have your words, find in others. There are so many people now openly talking about their life, एंड लिसन टू देम. लाइक अगर आप कॉमेडियंस को देखोगे तो वो अपनी लाइफ के इतने हम्म. पेन्स को कितना फनीली बोलते हैं, राइट? कि हमारी मॉम ने मेरे चप्पल उठा के मारी है. बट कैन यू रियली थिंक ऑफ अ चाइल्ड हिट बाय अ चप्पल अपनी मॉम से? It doesn't sound funny, right? And it's Yeah. not funny, but the way they speak about it, it's so funny. So the whole narration of their life, of their pain, they have converted into something which is funny, राइट? सो आई थिंक आप गजलें सुने, आप उर्दू सुने, सॉरी, आप गजलें सुने, आप पोइट्री सुने, if you read about them, they are actually not always lovey-dovey. It's pain also. It's you know. So I think the moment when you are not able to understand your voice or not able to understand your life, it's better you find from others, you borrow it from others till the time you can't find for yourself. And I'm sure slowly now you have those words and pictures and what do you say, you have those things with you slowly. I'm saying it's very slow process, but yeah, this is what I feel on how Yeah. you can be creative and you can convert your negative thoughts into something which is constructive. I won't say positive, but something which is more constructive. आई हैव टू टेक अवे जो तुमने अभी बोला ना. एक पहला कि हम इमोशन के साथ भी कुछ रिलेशन होते हैं. जो हम एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन को चेंज करने की जरूरत है. जरूरी नहीं कि कोई अगर फ्रस्ट्रेशन वाला जो इमोशन है उसके साथ उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे. रिएक्ट तो नहीं बोलेंगे कि रिएक्ट तो अभी तक करते आ रहे हैं, ऑटो पायलट मोड में करते आ रहे हैं. तो रिस्पॉन्ड करे तो अलग अलग तरीके से करे. दूसरा, जो दीपक रामोला जो है वो बोलते हैं ना कि हमें पर्सपेक्टिव बोरो करना जरूरी है, सीखना चाहिए. कि हम, क्योंकि हम ऐसा नहीं है ना कि हमने ही चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस किया है. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फेस किए होंगे. हो सकता है उनका वन ऑफ द तरीका जो है, वन ऑफ द वे हमसे रेजोनेट करे, वो तो हम पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन बोरो कर सकते हैं. वो दो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा जो अभी तुमने बोला उसमें से. या coming back to the points of limitations and boundaries, right, where you said ki it's very necessary to decide the boundaries and everything, but again my question always lied, how? As a person, when I was growing up, I didn't know what the boundaries are. I still don't know. There are a lot of times that I can't create those boundaries. It just and I feel that log wo boundary mere muh pe create karte hain, right? Then me creating those boundaries, people does it on my face. Or there are certain things that I know about myself, but I can't acknowledge that upfrontly because वो peer group में match नहीं हो रही,
या वो मेरे आप यू आर अफ्रेड कि आप टैग आ जाओगे या you won't be part of that group, and we can, like, humans are social animal, they need to be recognized, right? They need to be feel that they are in that particular group. So can you break down further of how you can create boundaries for yourself? बिगेस्ट फियर जो हमारा होता है ना बाउंड्री ना क्रिएट करने का, हमें लगता है कि हम हमेशा अकेले रह जाएंगे। सो जैसे कि मुझे बोलना है, सुबह को ना बोलना है इस बार कि नहीं मेरे पास कुछ पूछा उसने कि चलो घूम के आते हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा काम है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ना बोलने में इतना डर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अकेला हो जाऊंगा। तो वो जो बीइंग अलोन वाला पार्ट है ना, उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि भाई मैं इस तरीके से ही रह सकता हूँ। यानी वैल्यूज से जो हम ड्राइव होते हैं ना, वैल्यूज को हमारा आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद के वैल्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाएंगे। कि मुझे लगता है कि मैं एक भी पैसे का हेराफेरी नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी वैल्यूज है। लेकिन मैंने किसी और के बुलाने में, बहकावे में कर दिया, तो मैंने तो बाउंड्री नहीं क्रिएट किया। क्या मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है, उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा क्या मेरे वैल्यू सिस्टम है, क्या मेरे बिलीफ सिस्टम है, उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। और ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम अनकंफर्टेबल होते हैं कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता या नहीं खड़ी रहती है कोई, लेकिन उस सिचुएशन में हमें एक्सेप्ट करेंगे, इट्स ओके, मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं तब जाके हम मतलब बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस चीज को नहीं सोचते तो हम बाउंड्री क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा। हमें लगेगा कि नहीं मतलब कि आज के लिए बाउंड्री क्रिएट नहीं करते, कल कर लेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बाउंड्री क्रिएट करने में भी होती है बहुत बार कि नहीं आज दोस्ती में मतलब हम दारू पी लेते हैं, कल से पक्का नहीं पिएंगे। अगर लग रहा है कि दारू पीना आपके लिए सही नहीं है, आपने चूज किया है, नहीं इट्स ओके, आप बोलो कि मुझे नहीं पीना है, चाहे कितना भी फन उड़ाए। अगर लग रहा है कि नहीं आपके लिए दारू पीना ओके है, तो आप बोलो कि हाँ इट्स ओके। क्या डिफाइन क्या कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वही हमें डर लगता है हमेशा कि हम अकेले ना हो जाए किसी भी डिसीजन को लेके। तो बाउंड्री क्रिएट करने के लिए हमें रहना पड़ेगा कि भाई हम अकेले बहुत बार सिचुएशन में हो सकते हैं। और डिसअग्री करना मतलब ये नहीं कि आप मतलब उसके साथ झगड़ा कर रहे हो, डिसअग्री कर सकते हैं। डिसअग्री अगर उनके लिए ओके नहीं है तो आप ओके समझो, इट्स ओके। उनके लिए ओके नहीं, लेकिन मेरे लिए ओके है। तो ये मुझे लगता है कि इस थॉट प्रोसेस से गुजरना चाहिए बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। इसमें आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव में कंप्लीटली देयर आर 2-3 क्लैशेस आल्सो व्हिच आई विल बी वेरी ओपन अबाउट, जो मैंने आपके लोगों में बहुत देखा है, इवन इन माय ओन प्रोफेशन आई सीन। जब हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं ना, हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम ये रियलाइज नहीं करते कि सामने वाला बंदा कंफर्टेबल नहीं हो रहा। It's a very important thing to understand that आपकी बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले बंदे को नीचा दिखाओ, आप उसको डिसरिस्पेक्ट करो या आप आप उसकी रिस्पेक्ट मत करो। There's a very certain fine line between, right? जैसे आपने दारू की बात बोली, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि भाई मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती, आप मत, मैं नहीं पी सकता, इट्स अ रिस्पेक्टेबल डिसीजन। बट लेट्स से मैं ये बोल रही हूँ नहीं भाई, आई थिंक आई एम नॉट इन माई मूड, आई कांट डू दिस इज माई सर्टेन बाउंड्रीज, और इट्स एन इमरजेंसी, इट्स अ टास्क दैट नीड्स टू बी डन, देन यू कांट बी सो रिजिड टू योर बाउंड्रीज. So I think it's also very necessary to understand when to break those boundaries and not to break those boundaries. अगर आपको कोई आके सिर्फ बार-बार यूज कर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है, for me, if I dig down little deeper into this, so for me the boundaries is something where you know that you are going to fall down, where you know that you will get hurt. अब इसके बाद you are going to get hurt only, right? And 20s, or I won't even say now 20s, I think even kids are having those issues, जहाँ क्या आता है ना कि लोग आपके साथ सिर्फ एक सर्टेन चीजों के लिए या टाइटल के लिए हैं, वैसे उसके अलावा नहीं है। सो देन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके साथ लोग किसी सर्टेन चीज या टाइटल के लिए हैं, तो आप उनको कितना एक्सेस दे सकते हो। आप हर वक्त उनको ड्राइव नहीं कर सकते, राइट? अगर आपकी अच्छी जॉब लग रही है और आपके फ्रेंड की नहीं लग रही, तो इसमें आपकी गलती नहीं है,
पर यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर उसकी नहीं लग रही तो उसको बुरा लग रहा होगा, एंड हाउ कैन यू इंश्योर कि आप उसको कहीं नीचा ना फील हो, या हाउ कैन यू इंश्योर कि आप दोनों की दोस्ती में इस पैरामीटर का कोई डिफरेंस नहीं। तो आई थिंक बाउंड्रीज नीड्स टू बी really driven by your emotions. Agree. Can you bear out of this that much? क्या आप उसको अपने, जब हम कहते हैं ना कि हम अपनी डिफेंस वॉल्स नीचे गिराते हैं अपने प्यार के लिए, बट जब हम गिरा रहे हैं क्या हम कॉन्शियस हैं कि अगर वो प्यार चला गया तो वी विल बी एबल टू क्रिएट दोस बाउंड्रीज बैक अगेन फॉर अस, और या हम वो वॉल्स फिर से अपने लिए खड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एंड आई रियली वांट टू नॉर्मलाइज दिस फैक्ट कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बना पाते हो इन लाइफ। लाइफ इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। आप कॉन्टिन्यूसली अपने हर एक पीरियड ऑफ लाइफ में ये डिसाइड करते हो कि आपके कितनी बाउंड्रीज नहीं। लाइक 12th के बच्चे एक्चुअली अपने लिए बहुत अच्छी बाउंड्री बनाते हैं कि नहीं यार पढ़ना है, पर कॉलेज के बच्चे नहीं ये बाउंड्रीज बनाते, नहीं यार पढ़ना है। ये नहीं होता कॉलेज में, राइट? जॉब्स में हम बहुत इजीली बाउंड्रीज बना पाते हैं कि नहीं यार हमारा ये वर्क टाइम है, वर्क टाइम के बाद आएंगे, पर लेट्स से ऑन I अ think हॉलिडे यू कांट डू दैट। या एक इंटरेस्टिंग चीज जो तुमने बोला ना, मुझे लग रहा है कि बाउंड्री जो है ना हमारे नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है और इवॉल्व होना चाहिए। अगर क्योंकि मतलब अगर हमने रिजिड हो गए तो इट्स लाइक रूल हो गया ना, फिर मोनोटोनसली उसको फॉलो करते जा रहे हैं, इवन हमें अच्छा लगे ना लगे तभी फॉलो कर रहे हैं। तो उसको ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इवॉल्व हो रहे हैं तो हमारे उसी तरह बाउंड्री भी इवॉल्व होनी चाहिए। जहाँ पे लग रहा है कि ये बाउंड्री आपको पर्पस, जो आपका पर्पस है उसको सर्व नहीं करनी, चेंज कीजिए, रीडिफाइन कीजिए। क्या And I think you should break down boundaries to know what are your boundaries too. या So it's very necessary कि थोड़ा गिरो फिर उठो, but हाँ it's very necessary कि उठो। अगर गिरे मत, we should not be in the stage of coming back to victimization. So what do you think, how you can change the narration of being a victim to leading life? And I think इस पे बहुत बात हो रही है, like whole social media and everything is talking so much about, you can lead your life, you can do this, and still we see highest suicidal rates, right? India maybe we are considering. Yeah. How do you think that we can move our perspective from being victim to maybe leading our life? एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा, जो मैं खुद के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, कि लाइफ अनफेयर है, ये मानना पड़ेगा। और ये जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमें लगेगा ना कि मेरे ही साथ हो रहा है क्योंकि अनफेयर है ना, क्योंकि ये तो मतलब पता नहीं चला किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे साथ हो रहा है, वो भी हमें नहीं अंदाजा, उसका साइंस हमें अभी तक नहीं पता चला है। कोई एक इंसान अगर गोली चला दे दारू पी के तो हमारी मौत भी हो सकती है, या कोई एक इंसान अगर गाड़ी खराब से चलाए तो एक्सीडेंट से हमारी मौत हो सकती है। तो कॉन्सिक्वेंस अलग-अलग लोगों के हमें भोगने पड़ेंगे, तो ये हमें क्लियर होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, लाइफ जो है ना मीनिंगलेस है, और ये क्लियरली एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है ना कि यार यार इसमें मीनिंग है, इसमें मीनिंग है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें। तो हमें चूज करना पड़ेगा भाई कि मीनिंग है क्या। और ये ऐसा नहीं कि अचानक से आ जाएगा मीनिंग क्या देना है, लेकिन ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जो हम मीनिंग देते हैं ना उससे ही हमारी सफरिंग यानी पेन, प्लेजर और हैप्पीनेस उसी पे डिपेंड करता है। तो ये दो चीजें अगर बिगर पिक्चर में देखें तब हमें पता चलेगा कि भाई हम खुद अपने नैरेटिव से कितना। तीसरी चीज मुझे लग रहा है कि हमें ये देखना चाहिए कि भाई जो नैरेटिव से हम जो क्या बोलते हैं रेगुलरली पेन ले रहे हैं, उस पेन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय नहीं कर पाते तो आप कल से बोलते कि नहीं मुझे नहीं मतलब इसको रखना है, मुझे इससे बाहर निकल। कई बार क्या होता है उस पेन को इतना एंजॉय करने लगते हैं कि एडिक्टेड हो जाते हैं। नहीं होता है तो अरे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चाहिए। तो ये क्लियर होना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन जो है ना बहुत ट्रिक खेलता है कि आपके पेन से या जो भी क्या बोलते हैं फेमिलराइज इमोशन होते हैं ना, इवन वर्स्ट इमोशन, उसको आप फील करना चाहते हो। तो वो मुझे लगता है कि ये है। इस सब के लिए मुझे करने की क्या ज़रूरत है कि
हमें समझना पड़ेगा कि कौन-सा थॉट्स क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है और उसको धीरे कॉन्शियसली हमें सोचना पड़ेगा खुद। और आई थिंक जो और हमने बात किया कि पर्सपेक्टिव लेने पड़ेंगे कि लोग क्या मतलब किस तरीके से आगे बढ़े हैं। हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मतलब मुझे लगा कि 2 बुक जो है ना, बहुत हेल्प करेगा। मेरे पास अभी रखी हुई है और तुम्हारे पास भी है। आई थिंक ये दिख नहीं रहा है। ऐसे है। हाँ, ऐसे। द अल्टर्स ऑफ हार्ट करके बुक है वो। और देन मे बी यू शुड टॉक टू समवन। ये जो 2 बुक है जो वो बहुत हेल्प करेगी हमें खुद को समझने में। और ये वन डे का नहीं होता है ना कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए और आपको बोले कि नहीं आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तब जाके 1 से 2 साल में हमें अवेयरनेस होती है। तीसरे चौथे साल से हम रेगुलेट करना सीख जाते हैं अपने आप को। अचानक से नहीं होने वाली है। हमारी कन्वर्सेशन सुन के या किसी और की कन्वर्सेशन सुन के हम सिर्फ कन्वर्सेशन सुन के इंस्पायर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन ये हमें क्लियर होना है कि हमें ही खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। ये I think very well articulated, Kundan, that we need to find meaning to our life, and it's absolutely our choice, whatever meaning we put on, and it's very necessary to lead and regulate, right? It's very necessary to take responsibility, then we are not the victims, and make a conscious, I would say, conscious awareness that we are not the victims. Rather, we can be in the solution front, right? Um, and you can see all the leaders who have been in our life or who have been in our history also, they were the solution founders, right? They were the solution oriented persons, not the person who said, oh, I'm a victim. um, so I think this is very important, and thank you that you suggested this book. I think there are also 2 books that gives you very different perspectives on how to make your choices by the choice of Edith Arjun. Kundan only gave that book to me, uh, and it talks so beautifully about that. Even in a even in the worst situation like Holocaust, she was choosing consciously that she's not a victim of Holocaust. She was in the Holocaust almost about to die, when the American troops came and saved her. After that, she suffered, I'm sure, tremendously to recover from that pain, to recover from the pain that she lost her mother, her family, and then leading a life too. I think the whole idea comes down to that what it's always your choice to see the situation, and whatever you choose, whatever, whether you want to be a victim, you want to be a leader, you want to be a solution, whatever you want to be, your life is going to be like that. You can see like that, right? So I think that includes a lot of things. And if you want to be creative, I think the Midnight Library, Kundan, that's the book, yeah, right? Midnight. Oh, you read it and you'll understand कि एक बंदी किताबों से कितनी stories जीती है, अपनी कितनी stories imagine करती है. I think that will give such a great perspective of that you can be any person in the world, and you can realize that every story has its own pain, or every story has its own victims, who choose not to be victims, by the way. But yeah, I think these 2 books, again given by Kundan only to me, helped me build my narrations. And I used to think that, oh, I am a victim of things that happened to me in my life. uh, Now at least I don't think that. Now at least I know that in any picture of my life I would have, same, maybe different difficulties, but yeah, always would have another choice to make. If we abhi tak agar hum isko narrow down kare, so we come down to that empathy is something where you are understanding someone's situation as it is, without including your thoughts and opinions to it. Very necessary that we feel. And 3 ways to build self empathy is that one, stop be a solution founder. I won't say don't be a victim, but just try to be more solution founder. Have your negative thoughts converted into constructive thoughts,
And third is that know your boundaries and understand that you're changing. So your boundaries might change too. But just be cautious enough that you are not breaking up boundaries off a limit that you know you are gonna get hurt at the end. You should not do that. This is what we could conclude till now, and there's a lot of activities that you can do, right? Narration सीखने से लेके perspective change करना, tone change करना, um, understanding, taking बुक पढ़ना. perspective ones, book पढ़ना. I think there are a lot of ways that we discussed. Moving to our last section of how you can see an impact on this. Kundan, so we'll talk it's a very straightforward thing that we'll do. We'll just say, हमारे accordingly, ये impact आपको कैसे दिखता है, right? You can say it from your own journey, or if you have any observation basis, आपने इतने लोग में मुझे 4 साल से 5 साल लगे हैं, जो जब मैं 2016 से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ सेल्फ एम्पैथी को, 2020 के आसपास लगभग मेरे में सेल्फ एम्पैथी आना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो मतलब नहीं समझ पाते। पहले आप तो होता है ना कि नॉलेज के लेवल पे हम क्या चीज़ें डेवलप कर पाएँ, फिर एज़ अ स्किल के तौर पे हमने क्या डेवलप किया, फिर माइंडसेट के लेवल पे हमने क्या डेवलप किया, वो हमें डिफाइन करना पड़ता है, वो हो जाती है। तो 3 से 4 साल मुझे लगा सेल्फ एम्पैथी को डेवलप करने में। एम्पैथी मुझे लगा कि मतलब बहुत जल्दी सेल्फ एम्पैथी हो गया तो एम्पैथी एक होता है ना कि नेचर बन गया, कि आप जिससे भी जिस इंसान से बात करते हो तो होता है ना कि हम पर्सपेक्टिव का समझ रहे हैं, उसके इमोशन को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके इमोशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं और अब माइंडफुल रह रहे हैं। तो ये वाला असर जो है मतलब मुझे 5 से 6 महीने में मतलब लगा कि वो डेवलप कर लिया। और इसका इम्पैक्ट की बात करें ना, तो मैंने जितने लोगों को मेंटर किया है वो बहुत कनेक्टेड है मेरे से। इवन मतलब अगर बोले ना कि कुंदन क्या बोलते हैं का जो आउटकम अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मैं कनेक्टेड हूँ उस इंसान से। तो वो एक इम्पैक्ट रहा है और वो डेवलप किया है। तो कई बार जो बोलते हैं ना कि अगर हम एम्पैथाइज़ क्यों करते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है कि लोग कल्टीवेट करते हैं आपके एम्पैथी को, एम्पैथी से सीखते हैं कि एम्पैथाइज़ कैसे करना है। वो अपनी लाइफ में भी, इवन जब वो लीड करते हैं तब। और आई थिंक अभी जो लीडर्स हैं ना, उनके अंदर एम्पैथी रहना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयी क्विट करते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एम्पैथी, जो उनके मैनेजर नहीं रहते, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो लीडर के तौर पे भी हमें मतलब सोचना चाहिए कि अगर हम एम्पैथी नहीं लाएँगे तो इसका इम्पैक्ट यही होगा कि हमारे अंडर कोई काम नहीं करना चाहेगा। या very tough part at the end, but like, I won't pick that. See, for me, as I always said that it was an inbuilt nature, right? For us, it was very inbuilt nature values that have been converted. Personally, it was always my conscious choice to be empathetic so that I don't lose my value. But to what I understand, that it takes 1 year for you to build your knowledge around empathy. And when I say build your knowledge, it's not something कि आपको सिर्फ conference है, discussions attend कर रहे हो. I also think that you should start reading, observing, and start small. Every day 3 people से आप at least empathize करो and understand कि आप उनको किस level पर empathize कर पाते हो, right? It's also very necessary. तो आप उनको ये समझो कि क्या आपने अपने thoughts जोड़े तो कितनी बार जोड़े, 1 बार जोड़े, 2 बार जोड़े, हर sentence के बाद जोड़े, कैसे जोड़े. Then you also need to understand the fact that आपको उसके बाद कैसा लगा. आपने एक story सुनी, अब आपको कैसा लगा. क्या आपने उसको अपने पे ले लिया? क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं, राइट? हम दूसरे की सिचुएशन सुन के ऐसा लगता है कि वो रिजल्ट हमारे साथ भी वैसा ही होगा, which is not true. Everyone is leading their own unique life. So maybe same situation would have different impacts, different outcomes. तो again ये conscious मतलब to be very true, मैं तो लिखती थी कि मैं कितने लोगों से एम्पैथाइज कर पाई, कहाँ मैं अपने थॉट जोड़े, कहाँ मैंने नहीं जोड़े. दिस आई वाज कॉन्शियसली डूइंग. बट इवन टू कम अंडर दैट कॉन्शियसनेस, फर्स्ट आई वाज बिल्डिंग माय नॉलेज अराउंड एम्पैथी कि होती क्या है. सो सिंस आई न्यू फ्रॉम चाइल्डहुड, तो मेरे लिए थोड़ा प्रोसेस जल्दी हुआ. मैंने विद इन 1 ईयर ये लिखना शुरू कर दिया. बट या somebody who
who does not know or who is not conscious enough, so they need to, it might take a little longer for them. So within 1 year, I was little become conscious. I think by second year, I started using it with everything, not just human, but also animals, also nature, also my car as well, and like anything that I was very close to, I was using that. And especially with animals, because हम इतना animal torture देखते हैं, to be very true. And I can't deny कि लोगों के साथ torture नहीं हो रहा, but it just, क्या हम एम्पथाइज एक अनस्पोकन या एक ऐसे जानवर के साथ कर सकते हैं जो आपको शायद कभी आके ये नहीं बोलेगा कि आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, कभी नहीं बोलेगा. सो कैन यू एम्पथाइज टू दोज लिमिट्स will become your thing. But that brings me another point which I really think it's a need of an art to people to understand is empathize बहुत जगह नहीं भी करनी चाहिए, which is another debatable topic though. But I think अगर आप रेडी नहीं हो ना पेन बेयर करने के लिए किसी और का, आप मत करो एम्पथाइज, आप मत सुनो उसको. अपने आप को फर्दर डिग्रेड डाउन करके या अपने पेन में फर्दर घुस जाने में उससे कुछ नहीं होगा. So if you think that you are very broken, you are hurt, you are somebody that who is very affected by things, then don't empathize. Then try to protect yourself so that आपको at least hurt ना. I remember जब मैं initially animals के साथ I used to saw slaughtering, I used to saw ऐसे कटते हुए, I used to get so hurt कि मैं हफ्ता भर सो नहीं सकती थी, इतनी hurt. But then I started realizing कि अगर मुझे वो इतना पेन दे रहा है तो let me not see it, no? या तो मैं धीरे धीरे अपने अंदर वो आदत डालूं that I'm being okay with it, and then what can I do about it? So I always learned one thing, that if I can't do anything about it, I can pray. So I'll pray for that. So आज की डेट में today I can say that okay, you know what, अगर मेरे सामने कोई animal hurt हो जाता है या पेन में, I don't get so affected by it कि मैं उससे अपनी mental health खराब कर लेती हूँ. उतना नहीं होता मुझे अब. Rather, I try to find solutions for it. So I think it's very important to understand in case of empathy, especially empathy, कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए, don't do it. Don't do it. Choose not to do it. It's what do you think, Kundan, when you should not do empathy? I think it's really important point जो तुमने बोला है. मैं ना मतलब मूवी, न्यूज, ये सब से भी अफेक्ट होता है, इवन साउंड से भी. तो एक वर्ड होता है एम्पैथ करके, तो हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं. तो वो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली में क्या होता है. तो आप इसमें जनरली क्या होता है ना, जो भी हाईएस्ट इमोशन होता है ना, उसको आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इवन साउंड हो या वायलेंस हो, तो ये सारी चीज़ें. तो मुझे जब रियलाइज हुआ तो मैंने वायलेंस वाली मूवी देखनी छोड़ दी. मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, न्यूज़ नहीं देखता हूँ. अलग-अलग सोर्सेस से मुझे इन्फॉर्मेशन लेना है वो ले लेता हूँ, लेकिन मैं डेली का न्यूज़ नहीं पढ़ सकता. मुझे याद है एक हैदराबाद में कुछ हुआ था, कांड हुआ था जिसमें जला दिया गया था वुमन को. वो मैंने न्यूज़ पढ़ी, मैं 3-4 दिन तक नहीं सो पाया. तो मुझे पता है कि वो इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है ना, लेकिन वो मुझे अफेक्ट करता है. तो वो मुझे लिमिटेशन, फिर से यहीं पे कि मेरी लिमिटेशन क्या है. और वहाँ पे एम्पैथी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या पेन में जा रहे हैं. तो वहाँ पे सेल्फ एम्पैथी रिक्वायर्ड है, ना कि हम दूसरे को एम्पैथाइज़ कर पाएँ. तो जो हमने बोला ना कि जब जो चीज़ हमारे पास है उसी को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, माता रानी बोले या पितामह बनने की कोशिश करते हैं, हम हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेकिन ये हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि हम हर एक का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते. ये हमारी लिमिटेशन है, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, वहाँ से निकल जाना चाहिए. क्योंकि अगर नहीं निकलेंगे तो वो नहीं, आप कंपैशनेट भी नहीं हो पाएँगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाइएगा. उसके बाद हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि दुनिया खराब है, ये है, वो वगैरह तमाम चीज़ों में. तो मुझे लग रहा है कि वो लिमिटेशन हमारी खुद की पता होना चाहिए कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं अभी के लिए. देखेंगे ना बाद में अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी चीज़ें कर सकते हैं. लेकिन एक चीज़ और मुझे लगता है कि इस पेन से हमें
ये भी रियलाइज होना चाहिए कि इस चीज से हमें अफेक्ट होता है और पेन का सॉल्यूशन हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। Yeah, और इस exactly. सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में ही हम बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो बोल रहे थे ना कि हम जो प्यार को एक्सप्रेस करने का कंट्रीब्यूशन ही एक तरीका है ना। तो मुझे लगता है जब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे सेफ स्पेस नहीं मिला बचपन में, लेकिन वो पेन मेरे अंदर अभी तक है, वो हर्ट अभी भी करता है, लेकिन वही एक टूल बन गया है जिससे मैं सेफ स्पेस लोगों के लिए क्रिएट करता हूँ। तो पेन को भी याद रखना चाहिए, लेकिन जिस सिचुएशन में आपको लगे ये आपके लिए बेरेबल नहीं है, जस्ट मूव ऑन, वहां से निकल जाओ, जितना जल्दी हट जाना हो हट जाए। ये बहुत जरूरी है सेल्फ एम्पैथी के लिए और बेसिक खुद का ख्याल रखने के लिए। क्या? Absolutely. I think this is another debatable topic that's going on and around, and you should read about, I think, that why you should not be empathetic. This is very important to know कि अगर आप hurt हो जाते हैं या आपको लगता है कि आप उस pain को handle नहीं कर सकते, या you will feel that they are victim or the blame game when it's done, then it's better not to empathize. Then it's better to protect your self empathy, to the fact that you're not ready enough to come into the real world. One thing that we do as a, like, I think all social workers learn very in a very hard way, but we learn it, that whenever we empathize on the field, we understand that it's there and we are here. So we create a, it's not a boundary, it's not even a saying ki aap aao hum yahan. It's just to say ki I have my this aura, they have this aura, and then it's okay. So हम उसको सेल्फ में ना लाकर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो सिचुएशन है, वो समथिंग, इट्स नॉट द रियलिटी, इट्स नॉट द ट्रूथ. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अप, बट in the way that it just means, it's just understanding that individualization भी एक चीज होती है और उसकी रिस्पेक्ट उस वे होनी चाहिए. नहीं, एक एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल से इसको समझते, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। मान लो कि तुझे कुछ हुआ है, ठीक है, तू रो रही है और मैं जाके देखा और इतना ज्यादा अफेक्टेड हुआ कि मैं तुमसे ज्यादा रोने लगा। वन बेसिक चीज जो एम्पैथी में होती है ना, कि सामने वाला इंसान से ज्यादा आप डोमिनेटिंग इमोशन नहीं दिखा सकते, वो एम्पैथी डाइल्यूट हो जाता है। तो एम्पैथी में वही होता है कि हम जो सामने वाला होता है उससे ज्यादा फील करने लगते हैं। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को पहले संभालेंगे या दूसरे को संभालेंगे। एम्पैथी का मतलब उसके एक्सपीरियंस को समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको खुद को प्रॉब्लम हो रहा है। और कई बार करते हैं ना, सो मेरे को सबसे बड़ा मतलब मेरे जितने भी रिलेशन हुए हैं उनमें ये प्रॉब्लम ओवर केयरिंग आ जाता है। मैं अगर बोलूँ ना कि रात को मैं ट्रेन से निकल रहा हूँ, तो माँ रात भर नहीं सोती है और वो ज्यादा रोने लगती है या कुछ भी होती है, तो मुझे लगता है कि मतलब इस तरीके की एम्पैथी तो नहीं चाहिए। आई नीड समवन जो मुझे सपोर्ट करे। तो वो वाला पार्ट जो है ना कि एम्पैथी कितना रिक्वायर्ड होता है किसी के लिए, मे भी हो सकता है कोई एम्पैथाइज करवाना ना चाहे, तो वहां पे भी हमें रोकने की जरूरत है। तो या Absolutely. But not denying the fact that it's a skill that need to be learned. It's an art that you understand once you grow in life, and the sooner you realize it, the sooner it's better. Though again, it starts with self. If you can be self-empathetic, if you can understand what's going with you, it's great. And then you should accommodate or facilitate other people. But again, personally, that I always suggest that if somebody is coming to you, either lend an ear or either give them some solution or openly tell them that you're not ready to hear something like that. But don't just disrespect them by not listening to them, और डोंट मेक देम फील कि उन्होंने जो भी बोला वो इतना इनवैलिड था या इतना स्टूपिड था या नॉट नेसेसरी था, या don't belittle them. At least give them a space to either listen, and if you can't give them space to listen, at least tell them openly that you're not ready to listen to them. So you are just protecting yourself from that pain. I think it'll be great. And the world would have be a better space, of course. Yeah. Oh, thank you so much. I guess anything else? Yeah. No, thank you so much. Yeah, it's really wonderful conversation. मैंने बहुत कुछ मतलब काफी दिनों के बाद हमने जो 2am वाली कन्वर्सेशन किया है, तो
And I Thank think you. in 2 a.m.s we only, find the real pictures of our life. And I hope it helps everyone who is listening, and you can help others and see how you can contribute. So, Talia, till then, thank you so much. Have a good time. Bye. Thank you. Thank you. Bye bye.